Hello everybody, welcome back to the series of cytology. In the previous video, we have talked about the introduction to the cytology. In this video, we are going to talk about the different parts of a cell. And to this video, I have added a new dimension, that is a topic of sex determination, which is linked to our topic of cytology. This is the second part of our video. And this series is conceptualized by me, Somil Malhotra. This is our Facebook page with the official logo of Patiala classes. Then come to this. In the previous video, we have talked about the diagram of cell, in which we talked about the cell wall, cell membrane. In the middle of cell, we have nucleus, which is having something called the genes. Then this nucleus is surrounded by a jelly-like substance that is known as cytoplasm, and other organs of this cell is endoplasmic reticulum, mitochondria, ribosome, lysosome and Golgi Apparatus. Then come to the cell wall. Cell wall kya hai? It found in the fungi and the plants that provides additional strength to this cell. And what is this cell wall? It is a thick wall built around the cell. Cell के बाहर एक extra wall है जो इसको additional strength provide कर रहा है, जिसको हम cell wall कह रहे हैं. In the prokaryotic organisms like the bacteria, this cell wall is made up of material known as the peptidoglycan. In the eukaryotic organisms like the plants, it is made up of cellulose. In fungus, it is made up of something called chitin. In animals like the human beings, it is absent. ठीक है, इसको याद रखना बहुत important है. Then come to the cell membrane. Cell membrane क्या है? This is a second layer after the cell wall. If we go from the outside to the inner side of this cell, the second layer comes is cell membrane. What is this? Cell membrane controls the movement of materials in and out of the cell. ये material कौन सा होगा? Living cell है. कोई भी living thing को जीने के लिए क्या चाहिए? एक water चाहिए और oxygen चाहिए. उसके movement का control कौन करता है? Cell membrane. Then it is found in the all cases irrespective of prokaryotic organism and eukaryotic organism. Cell membrane is a bilayered structure in which protein is sandwiched between lipid on the both sides. दोनों तरफ लिपिड है. लिपिड क्या होता है? फैट्स. Then come to the chloroplast. Chloroplast क्या है? It found only in the plant cell. Plant cell में मिलता है. That converts light energy of the sun into the sugar. हो क्या रहा है यहाँ पे? सन से एनर्जी आई in the form of light. ठीक है. प्लांट्स ने क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को शुगर एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. ठीक है. और ये किस पे डिपेंडेंट होता है? फोटोसिंथेसिस डिपेंडेंट अपॉन अ ग्रीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट दैट प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू द प्लांट, दैट इज नोन एज क्लोरोफिल. क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस होती है. ठीक है. देन दिस फोटोसिंथेसिस takes place in two steps. In the first step, it is known as light reaction. Another step is known as dark reaction. When during the days, in the presence of light, when the photosynthesis occur in granum, it is known as the light reaction. And during the nights, when this photosynthesis occur in stroma, yani ki in the absence of light, that is known as dark reaction. Then come to the mitochondria. Mitochondria is something that provides energy to the cell in the form of ATP. ATP stands for adenosine triphosphate, and 1 mole of ATP provides 7.3 kilocalories of energy. Because mitochondria is mitochondria provides energy to the cell, that is why we call it as a powerhouse of a cell. Then come to the ribosome. Ribosome is a small organelle involved in the process of making protein, which is called protein synthesis. मैन्युफैक्चरिंग को बायो में सिंथेसिस कहते हैं. ठीक है. प्रोटीन बना रहा है राइबोसोम. देन कम टू लाइसोसोम. लाइसोसोम इज अ डाइजेस्टिव एंजाइम विच हैज एन एसिडिक इंटीरियर. डाइजेस्टिव एंजाइम है, एसिडिक इंटीरियर तो होगा ही. तो ये इसका जो एसिडिक इंटीरियर है वो एंजाइम कौन सा है? दैट इज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम दैट ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स food molecule into the simplest form so that cell can digest it. Sometimes this lysosome is known as suicide bag. होता क्या है कि sometimes this bag of lysosome gets destroyed. जब ये फट जाता है ना, और इसका एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है इसके अंदर, वो ना इसमें फैल जाता है. साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक सब्सटेंस है उसमें फैल जाता है. उससे क्या होता है कि ये साइटोप्लाज्म को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है और सेल मर जाता है.
जिसलिए हम इसको बोलते हैं सुसाइड बैग। देन कम टू द गोल्जी अपरेटस। फर्स्ट टाइम इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलियो गोल्जी। अगर ये नाम याद ना रहे ना, कैमिलियो गोल्जी, पंजाबी में एक सॉन्ग है काली कैमरो, उससे याद रख लियो, ठीक है। देन ये गोल्जी अपरेटस क्या है? इट इज अ वेसिकल्स अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन सेक्स लाइक सिस्टम्स, टैंक से बने हुए हैं ना, एंड इट इज हैविंग अ कनेक्शन विद अ मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इतना याद रख लो कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के साथ इसका कोई कनेक्शन है। अब क्या कनेक्शन है ये थोड़ी देर में देखेंगे, और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को भी अभी हमने पढ़ना है, ठीक है। देन इसका मेन फंक्शन क्या है? इट्स मेन फंक्शन इज टू पैकेजिंग ऑफ सेल मटेरियल। सेल का कोई भी मटेरियल है उसको पैक करने में ये हेल्पफुल होता है। देन कम टू एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या है? सेल है, सेल के मिडल में न्यूक्लियस है, उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके चारों तरफ ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बना होता है, ठीक है। ये है क्या? इट इज अ कॉन्टिन्यूअस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर का जो लेयर है उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कह रहे हैं। दैट इन्वॉल्व्स इन द प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस। प्रोटीन और लिपिड बनाने में हेल्पफुल हो रहा है। एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होता है, एक को हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं और एक को रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। दिस इज अ डायग्राम ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसको हम समझेंगे कैसे? मान लो ये एक टेबल है, ठीक है, उस टेबल के ऊपर कुछ चिपकाया हुआ है। वो क्या चिपकाया है? दैट इज राइबोसोम्स, ठीक है। जहां पे कुछ चिपकाया हुआ है और वो सरफेस रफ हो गया, ठीक है, उसको हमने नाम दे दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। सो where there is a presence of ribosome, it is known as rough endoplasmic reticulum and it involves in the protein synthesis. प्रोटीन बनाने में वो हेल्पफुल है। where there is absence of ribosome, जहां पे राइबोसोम्स नहीं है उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कह रहे हैं। एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, इट इज नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड इट इन्वॉल्व्स इन लिपिड फॉर्मेशन, फैट मॉलिक्यूल बना रहा है वो। देन कम टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? इट इज अ सिंगल राउंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है, बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन कौन सी है? न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसलिए इसको हम डबल मेम्ब्रेन कह रहे हैं। एंड दिस न्यूक्लियस कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। डायग्राम में देखा था ना सबसे पहले, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, ठीक है, उसके अंदर जीन होता है और फाइनली लास्ट में ना डीएनए होता है। फोरेंसिक साइंस वाले कहते हैं ना डीएनए टेस्ट कराना है, वो इसके बारे में बात करते हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, उसके अंदर जीन और डीएनए, फाइनली इसके बारे में बात करते हैं। देन कम टू क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है? इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर made up of nucleic acids and protein that carries genetic information in the form of genes, ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है क्रोमोसोम्स। और ये अपने क्रोमोसोम्स की डायग्राम है। इसमें क्या है कि इसका ये जो हेड है ना, ये जो हेड है, इनको हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। इसकी ये स्मॉल आर्म है, इसको हम पी आर्म कहते हैं। इसकी ये जो लार्ज आर्म है, इसको हम क्यू आर्म कहते हैं। और इसका जो सेंटर है उसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है। Then come to number of chromosome in the different species. ये क्या है? इस टेबल में क्या शो किया हुआ है? कुछ स्पीशीज के नाम दिए हुए हैं, उनके बायोलॉजिकल नेम्स दिए हुए हैं सेकंड कॉलम में। Then finally we have diploid number of chromosome. Di, the word di means two. Di का मतलब क्या है? two. और कई बार ना हमारे पास एक वर्ड आता है हैप्लॉइड। हैप का मतलब क्या है? हैप्लॉइड का मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये डाइप्लॉइड जितने भी है ना, ये इवन में है, ठीक है। अगर कभी ये पूछ लिया कि बफलो का हैप्लॉइड कितना, अगर 60 है डाइप्लॉइड तो इसका हैप्लॉइड 30 हो जाएगा। कैट का डाइप्लॉइड 38 है तो हैप्लॉइड 19 हो जाएगा। सिमिलरली ह्यूमंस का बायो में होमोसेपियंस कहते हैं, इनके डाइप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर 46, हैप्लॉइड कितने हो जाएंगे? 23। देन क्वेश्चन अराइजेस, क्रोमोसोम्स का यूज क्या है? क्रोमोसोम्स आर यूज इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज हो रहे हैं। हो क्या रहा है यहाँ पे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या? इट इज अ डेलिबरेट मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स टुक प्लेस बाय द मैनिपुलेटिंग द जेनेटिक मटेरियल। जो जेनेटिक मटेरियल है ना, उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है तभी होगी इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम। जैसे कि बफलो के नंबर ऑफ क्रोमोसोम डाइप्लॉइड 60 है और कैटल के भी 60 हैं। If the number of chromosomes are same, then the desired results can be there. If the number of chromosomes are not same,
then desired रिजल्ट्स विल नॉट बी देयर। जैसे कि बफलो और कैट के बारे में बात करते हैं, इन दोनों का अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग करने की कोशिश करें रिजल्ट्स ठीक नहीं आएंगे, ठीक है। देन कम टू जीन। जीन क्या है? जीन इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से उनसे उनके बच्चों में आते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक द आई कलर, हाइट, स्किन कलर एक्सेट्रा। Then come to DNA. DNA क्या है? DNA is known as a deoxyribonucleic acid. It is a long thin molecule made up of something called the nucleotides का बना होता है. And nucleotides are of 4 different types. कौन कौन से 4 types हैं? Adenine, thymine, cytosine and guanine. And these 4 are usually represented by their initial letters. जैसे adenine का A, thymine का T, cytosine का C and guanine का G. Then come to nucleic acids. Nucleic acids क्या है? Nucleic acid is a complex organic compound found in a cell. It contains special genetic instructions in the coded form. ठीक है। Then it is of 2 types. 2 तरह के होते हैं, एक को DNA कहते हैं, एक को RNA कहते हैं। DNA stands for deoxyribonucleic acid, RNA stands for ribonucleic acid. Then इनका difference क्या है? DNA is deoxyribose type of sugar and RNA is ribose type of sugar. In DNA हमारे पास बेसिस कौन से हैं? एडेनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन एंड गुआनिन, अभी पीछे देख के आए हैं। और आरएनए के पास क्या है? इट कंटेन्स यूरासिल। जहां जब हम डीएनए में थाइमाइन यूज कर रहे हैं, आरएनए में यूरासिल यूज कर रहे हैं एट द प्लेस ऑफ थाइमाइन, ठीक है। अदरवाइज आरएनए में बाकी सारा कुछ सेम है, जैसे कि एडेनाइन, साइटोसाइन एंड गुआनिन, बस थाइमाइन का डिफरेंस है। देन डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। डबल स्टैंड है, ऐसे 2 स्ट्रैंड्स बने हुए हैं। एंड आरएनए इज अ सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। देन डीएनए इज मेनली फाउंड इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है। आरएनए हमें कहां मिलता है? इट फाउंड इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? दैट जेली लाइक सब्सटेंस। दिस इज अ डायग्राम ऑफ डीएनए और ये आरएनए की डायग्राम है। डीएनए में साइटोसाइन यूज कर रहे हैं, आरएनए में भी कर रहे हैं। गुआनिन जहां डीएनए में, आरएनए में भी, एडेनाइन दोनों में है। लेकिन यहां हम डीएनए में थाइमाइन यूज कर रहे हैं, वहीं हम आरएनए में यूरासिल यूज कर रहे हैं, ठीक है। देन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है? इट इज अ डिवीजन ऑफ सेल इनटू द 2 डॉटर सेल्स विद द सेम जेनेटिक मटेरियल। सेम जेनेटिक मटेरियल है एंड इट इज ऑफ 2 टाइप्स। एक को माइटोसिस कहते हैं, एक को मियोसिस कहते हैं। माइटोसिस इज नोन एज अ इक्विटेशनल डिवीजन। इक्विटेशनल का मतलब इक्वल डिवीजन, वेयर एज मियोसिस इज कंसिडर्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। रिड्यूस हो रहे हैं। कैसे? In the mitosis kind of cell division, it results into the 2 daughter cells. Each is having the same number of chromosomes. 2 daughter cells हैं and parent nucleus के पास जैसे 46 chromosomes हैं, उसके daughter cells के पास भी 46 chromosomes हैं. Whereas in the meiosis type of cell division, it results into the 4 daughter cells. 4 daughter cells. Each with the half number of chromosome. Parent nucleus के पास 46 chromosomes हैं और इसके daughter cell के पास half number of chromosomes हैं, जिसको हम haploid कहते हैं. Then come to the process of fertilization. इसमें क्या है कि sperm को, male sperm को हम male gamete कहते हैं और female egg को हम female gamete कहते हैं. और यही एक स्टेज है जहां पे meiosis type of cell division will take place. Otherwise, throughout the process of fertilization, mitosis kind of cell division will take place. Meiosis के वजह से egg में 23 chromosomes हैं और sperm में भी 23 chromosomes हैं. After the fertilization, first cell will came into the being. जो unicellular होगा उसको हम zygote कहेंगे and it will have 46 chromosomes in 23 pairs. क्या है? क्या फीमेल है और ये मेल है. फीमेल से egg आया, मेल से sperm आया और एक आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट विल रिजल्ट इनटू अ zygote. एक सेल बना, माइटोसिस की वजह से उसकी सेल की डिवीजन स्टार्ट हुई, ठीक है. एंड अ स्टेज विल कम व्हेन इट विल नोन एज एम्ब्रियो. एम्ब्रियो बन जाएगा. देन फिर अगेन माइटोसिस होता रहेगा. देन अ स्टेज विल कम, इट विल नोन एज अडल्ट. अडल्ट कहेंगे उसके बाद उसको, ठीक है. देन कम टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विच आर 46 आर फिक्स्ड फॉर द ह्यूमन बींग्स. और फीमेल को हम बायोलॉजी में गाइनो कहते हैं, मेल को एंड्रियो कहते हैं और दोनों के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. फर्स्ट 44 क्रोमोसोम्स
इन द मेल एंड फीमेल आर नोन एज ऑटोजोम्स, ऑटोजोम कह रहे हैं उनको, ठीक है। फीमेल के पास लास्ट दो क्रोमोसोम्स हैं, XX क्रोमोसोम्स हैं, मेल के पास XY क्रोमोसोम्स हैं, जिनको हम एलोसोम, हेटेरोसोम और सेक्स क्रोमोसोम्स भी कह रहे हैं। देन कम टू सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें क्या हो रहा है, फीमेल के पास 46 क्रोमोसोम्स है, मेल के पास भी 46 क्रोमोसोम्स है। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, ठीक है, फीमेल ने 23 क्रोमोसोम्स के साथ एग प्रोड्यूस किया, जिसको हम ओवम कह रहे हैं। मेल ने 2 केसेस के साथ स्पर्म प्रोड्यूस किया, एक के साथ X क्रोमोसोम, दूसरे के साथ Y क्रोमोसोम। व्हेन sperm containing the X chromosome will fertilize with the egg, it will result into the 2X chromosome and the new female baby will develop. On the other hand, if the Y chromosome of the sperm will fertilize with the X chromosome, it will result into XY chromosome and it will result into a new male child. Then sex determination क्या है? It can only be possible at the time of fertilization. ठीक है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जब जाइगोट बनता है तभी इसको डिटरमाइन कर सकते हैं. देन मेल इज अ डिसाइडिंग फैक्टर. कैसे मेल डिसाइडिंग फैक्टर है? बिकॉज मेल के पास एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स हैं, फीमेल के पास सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स हैं. द चांसेस ऑफ बीइंग मेल एंड फीमेल आर 50-50. 50-50 चांसेस हैं. ये नहीं है कि इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं. देन फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगी और डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट विल टेक प्लेस इन यूट्रस. अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसकी डायग्राम दिखाऊंगा, ठीक है, उसमें आपको क्लियर होगा ये है क्या. देन इंडिया में ना अबॉर्शन के लिए एक एक्ट है. वो एक्ट क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट ऑफ 1971, जो ना सीलिंग देता है, उसको कैप देता है कि दैट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी डन इन 12 वीक्स. दैट कम्स आउट टू बी 3 months. इन द सर्टेन केसेस और इन द एक्सट्रीम केसेस इट कैन बी डन इन द 20 वीक्स. ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी 5 months. इंडिया में ना एक डिबेट चल रहा है कि इस 20 वीक को इंक्रीज करके 24 वीक्स करना चाहिए कि नहीं. इसके लिए पार्लियामेंट में एक बिल भी पेंडिंग है. ठीक है, ये जो कंट्रोवर्सी है ना इसके रिगार्डिंग में एक आर्टिकल बताऊंगा आपको, एक बार उसको पढ़ लेना. देन दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. दिस इज अ fallopian tube where fertilization takes place, and after that zygote has to travel all this route and it will implant in the uterus where the development of zygote will take place and the development of baby will take place here. Then this is that article right to choice जिसके बारे में हम बात कर रहे थे. हिंदू का आर्टिकल है, 3 मार्च का आर्टिकल है. ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेना और आपको पता लग जाएगा कि कंट्रोवर्सी क्या चल रही है इसके बारे में. ठीक है, then this was all about our topic of cytology. If you have any doubt or query, you can ask in the comment section below. And if you like this video, please don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you. Stay tuned.